So today we are going to discuss math class. लिखने की जरूरत नहीं, हम नोट्स दे देंगे। फिर भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट ज्वाइन नहीं। मैथ क्लास कम्स अंडर java.lang पैकेज। ज्वाइन कर लिया आप लोगों ने? Here are many static function inside math class. Okay, so one by one I will cover all the functions. Mat.pow, this function will return the power. Power. Okay. Here a comma b. A is the base, b is the power. Actually, most of the people are aware about the basic mathematical function, but today I will cover all the mathematical functions. This class is very important. Math.pow. Okay. For example, just 1 second, I want to open the sheet where I've written all the mathematical functions. Now, this sheet is visible to all of you. I have expanded the screen. Okay. Now, so I have started from the math function, no problem. So these are the variation of the math function. Math comma pow 2 comma 3 means 2 to the power 3. 2 to the power 3. So 2 to the power 3 is 8. But this math.pow function always return the double type of value. So value which will be stored in X will be double type. Understand? Are you getting? Okay. So here 2 to the power 3, that means is equal to 2 into 2 into 2 is equal to 8.0. Okay. If you don't want the fractional part, so you can do the type conversion here. How we can do the type conversion? 1 minute. Look at the screen. Suppose int j is equal to mat.pow 2 comma 3. Now before mat.pow we can write down in bracket int. Now what will happen? 8.0 will be converted into 8, then it will be stored in j. All right. So here the answer will come only 8. Integer part, not fractional part. Understand? Now second is sqrt function. Sqrt will provide the square root. Oh, 1 minute. There are some more variations of the mat.pow. 2 comma minus 2. Now what will happen? 2 to the power minus 2. 2 to the power minus 2 must means 1 upon 2 की power 4. That means 1 upon 2 to the power 2 is equal to 1 upon 4. And 1 upon 4 is equal to 0.25. Correct? Do you understand? Okay. All right. 2.0 comma 4.0 means 2 to the power 4. So 2 to the power 4 is equal to 16.0. And all are covered. Clear? Now, second is mat.sqrt. This is mat.sqrt. Mat.sqrt return the square root of any number which is passed inside. Okay, just a moment, please. Here 16, n is equal to 16, and we are passing 16 in mat.sqrt. So under root 16 will give 4, but mat.sqrt always
is also written the double type of value. तो जो आंसर आपके डी में आएगा वो आंसर 4.0 होगा एंड दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16. अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? ठीक है. अब आप ये बताइए कि अगर हम लिखते हैं मैथ डॉट SQRT 144. So the square root of 144 is 12.0. Very good. Here also you can do the typecasting by the INT. If you want the integer value, you can put some typecasting operations here. Means you can write down typecasting here. Sorry. So don't get confused. Okay. Now, minus 16 will produce NaN. Means minus 16 negative number square root is not possible. Here it is written n must be positive. Square root of negative value is an imaginary number. It returns the NaN for the negative value, not a number. NaN means not a number. तो negative का कभी भी square root find out नहीं हो सकता. Clear? Any problem? So two things very important. Mat.pow return the double type value and mat.sqrt also return the double type. Now, second is min. Min means minimum value. तो अगर हम 4,6 पास कर रहे हैं तो 4 और 6 में मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी? 4. और अगर 4.6 और 2.8, ये जो mat.min है ये एक ओवरलोडेड फंक्शन है. ओवरलोडेड फंक्शन है मतलब ये इंटीजर भी एक्सेप्ट कर सकता है और डबल. बट इसके साथ एक कंडीशन ये है कि ये सिर्फ 2 ही नंबर एक्सेप्ट कर सकता है, 2 से ज्यादा नहीं और 2 से कम भी नहीं. अंडरस्टैंड? लेकिन वो 2 नंबर आप इंटीजर भी पास कर सकते हैं और ओके. तो mat.min अगर हम 2.4 माइनस 2.4 और माइनस 9.5 देंगे तो मिनिमम कौन सा होगा? -9. नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतनी छोटी. अब देखो यहां पर mat.min 2.4, 7.8 एरर पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिशन एंड शुड बी डबल टाइप. क्योंकि 2.4 और 7.8 में से मिनिमम वैल्यू 2.4 होगी लेकिन उसको होल्ड कर रहे हैं हम इंटीजर में, इसलिए फ्रैक्शनल वैल्यू कैन नॉट बी स्टोर इन इंटीजर टाइप वेरिएबल, इसलिए यहां पर पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिशन की एरर आ रही. तो यहां पर INTN की जगह पर हमें डबल एन लेना होगा. हाँ नहीं, एक्चुअली द आंसर इज कमिंग 2.4 एंड 7.8, तो उसको हम वहां पर टाइप कास्ट कर सकते हैं, तो वो भी पॉसिबल है. ओके, तो जस्ट अ मोमेंट, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम जावा इन्वायरमेंट में चलते हैं और यहां पर हम आपको बताते हैं कि एक्चुअली क्या है. Now, here it is a compile time error. Possible lossy conversion means double value cannot be stored in integer. So here we have to change double. Number 1. Now it's fine. It will not produce any compile time error. Understand? और अगर आप यहां पर integer रखते हैं, then again you have to do a explicit type conversion. This is called explicit type conversion. तो इस केस में आंसर क्या आएगा? जनरली अगर देखा जाए तो 2.4 और 7.8 में मिनिमम कौन सा है? 2. लेकिन 2.4 को जब हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल ओनली गिव 2. तो n में आंसर क्या आएगा आपका? 2. Absolutely fine. Do you understand? Do you understand? इसी की जगह पर आप mat.max भी यूज कर सकते हैं. तो mat.max जो है वो मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करता है. तो 10,56 में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 56. तो 56 ही आंसर आएगा एज ए मैक्सिमम वैल्यू. आई वांट टू शो यू द रिजल्ट, यू विल बी बेटर अंडरस्टैंड. ओके,
मैंने आपको बताया है कि हम इसमें 2 से ज्यादा पैरामीटर पास नहीं कर सकते. अंडरस्टैंड? It is basically applicable for the 2 parameters, not more than 2 parameters. We cannot pass more than. Okay. Again, exactly we have to pass 2 parameters. That parameters may be integer and that parameters may be. No problem. Understand? Okay, fine. That's fine. So mat.min and mat.max is covered. Okay. Journey continues. आगे चलते हैं. Log. Actually, log के बारे में ये बता दें कि मोस्टली अगर हम लोग मैथमेटिकल फंक्शंस कैलकुलेट करते हैं तो कुछ लॉग टेबल दी जाती. लॉग टेबल का मतलब है कि कुछ ना कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कुछ नंबर्स की लॉगरिथम वैल्यूज होती. तो जिस नंबर की आपको लॉग वैल्यू चाहिए है वो नंबर आप यहाँ पे पास कर देंगे और अकॉर्डिंग टू दैट योर लॉग वैल्यू विल बी देयर. ये क्वेश्चन बेसिकली ऐसे ही पूछा जाता है कि what is the purpose of this function return the natural logarithm value of the given argument and it always return the double type of value. ये भी हमें डबल टाइप की वैल्यू देता है. कभी कभी इसका रिटर्न टाइप पूछ लिया जाता है. क्लियर? थोड़ा और नीचे आते हैं. अब देखो, अब हम एक साथ कवर करते हैं मैट डॉट सील एंड फ्लोर. उसके बाद कवर करेंगे, हाँ, छोटा सा एक फंक्शन है मैट डॉट एबीएस. मैट डॉट एबीएस प्रोवाइड्स द पॉजिटिव वैल्यू इफ नेगेटिव वैल्यू इज कमिंग. अगर आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है तो उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव ही रखेगा. दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव. सिर्फ नेगेटिव आंसर जो आ रहा है उसको ही पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, बट पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखेगा. अब हम लोग टूर बनाते हैं पूरा मैट डॉट सील और फ्लोर का. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 4 फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट related to the round off. Number 1 is seal, then floor, then round, then RINT. Clear? So one by one I will cover all these important 4 functions. ठीक है. तो जैसा कि नाम लिखा है सील और फ्लोर, ये अपने नाम के अकॉर्डिंग काम करते हैं. सील का मतलब होता है टेरेस, छत, और फ्लोर का मतलब होता है फर्श, बेस. तो सील जो है वो हमेशा मैक्सिमम पे राउंड ऑफ करता है और फ्लोर हमेशा मिनिमम पे राउंड ऑफ करता है. तो पहले हम सील के बारे में लिखेंगे, तो ध्यान से देखना. मैट डॉट सील एंड 1.0 या 4.0. क्लियर? ओके. यहां पर हम इसे कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद, बिकॉज आई एम राइटिंग ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस with positive and with negative, then you will never face any problem in examination. This will 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 and 4.5, then 4.6, then 4.7, then 4.8, then 4.9. In possible, I have written all the combination, right? See, 4.0 is a neutral case. It will return 4.0 only. But अगर सील में पॉइंट के बाद 1 है या पॉइंट के बाद 2 है, मतलब 0 से ऊपर की वैल्यू है, 0 से अबव वैल्यू, तो ये इंटीजर पार्ट को यानी कि 4 को एक इंक्रीज कर देता है और आंसर आ जाता है 5.0. तो मींस 4.1 विल बिकम 5.0 और 4.2 विल बिकम 5.0. बस इंटीजर पार्ट को एक इंक्रीज कर दे. तो इंटीजर पार्ट यहां पर 4 है, तो पॉइंट से पहले जो भी गिनती दी गई है उसको इंटीजर पार्ट बोलते हैं. तो ये एक वैल्यू को इंक्रीज कर देता है. पॉइंट के बाद कुछ भी हो, डजंट मैटर. तो ये कितना हो जाएगा?
ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? होप यू अंडरस्टैंड। और ये कितना हो जाएगा? ऑल द वैल्यूज will be the same as 5.0, means it will increase the integer value by 1. पॉइंट के बाद 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो। कहां पर 4.10 मतलब 4.1 ही तो हुआ। 1 और 0 दो अलग अलग वैल्यूज है ना, तो 4.1 विल बिकम अगेन 5.0। मैं अभी टेस्ट करा दूंगा, पहले हम इसको रन कर लें। क्यों? तो रन करने के लिए, एंड कैन यू प्लीज चेक all the values are matching with the red color? नहीं? ओके, क्लियर। मतलब मैक्सिमम पे राउंड ऑफ करता है, हायर वैल्यू की तरफ जाता है। किस तरफ जाता है? मिनिमम की तरफ नहीं जाएगा। नकुल, आर यू ट्राइंग टू राइट समथिंग? अच्छा, अब अगर मान लो यही सारी वैल्यूज नेगेटिव के साथ होंगी तो क्या होगा? एक्चुअली दो कॉम्बिनेशंस हैं। विथ नेगेटिव। अब हम सारी वैल्यूज के पहले क्या लगा देंगे? माइनस साइन। इसके बाद में हम कुछ रैंडम वैल्यूज आपसे पूछेंगे ताकि आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ जाए। बहुत ध्यान से देखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली। निगेटिव के केस में क्या करता है? दिस इज एक्चुअली अ न्यूट्रल केस, तो -4.0 विल बिकम -4.0, पॉजिटिव 4.0 विल बिकम पॉजिटिव 4.0। अब अगर आपके नंबर नेगेटिव में है और पॉइंट के बाद 1 2 3 4 मतलब 0 से ऊपर की कोई वैल्यू, तो ये मैक्सिमम की तरफ डाइवर्ट होता है, तो ये -4.0 ही दे देगा। क्योंकि अगर ये -5.0 करेगा तो इसका मतलब ये कम की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, तो ये कम की तरफ डाइवर्ट नहीं होता है, ये ज्यादा की तरफ डाइवर्ट होता है। तो -4.1 विल बिकम -4.0 और -4.2 विल बिकम माइनस, एंड -4.3 विल बिकम, सब सेम हो जाएगा। तो आई कैन राइट लाइक दैट। क्यों भैया? ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। तो one very important topic is covered from the class 9 to class 12th. Just a moment, please. Can you please match? Can you please match? Understand? बली नहीं समझ रहे बेटा, आंसर मैच होती। अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो आपको करना है और मुझे उसको इमीडिएटली, पहले हम P फॉर कॉपी पे, हाँ कॉपी पे, ठीक है। अच्छा, mat.ceil with negative values.
मैथ डॉट सील विथ नेगेटिव वैल्यूज। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं जो कि आपको जल्दी से ट्राई करना है। See, and your answer will be check. Mat.seal 15,9 12,10 89.2 minus 15.9 and minus 7.9. Your time starts now. Share the answer in the group with your name. पहले अपना नाम लिखना ऊपर। With your name. निकाल लिया? जब कॉपी पे आंसर निकाल लीजिएगा। Share your answer with your name. बेटा वहां बात कर रहे थे आप, इसलिए भेजा गया है, इसलिए यहाँ भेजा गया। Done? ओके, नकुल ने भेज दिया। अरे टाइप नहीं करना है बेटा, फोटो क्लिक करके भेज दो। अपना नाम लिख दो ऊपर और फोटो क्लिक करके भेज दो। टाइप नहीं करना है। देखो बतूल ने भेजा। This is Wali answer. Time up. सभी तुम्हारे जितने भी लोगों ने भेजे हैं, बतूल ने और तुमने। क्या तुम्हारे आंसर्स मैच हो रहे हैं इससे? ऑल और वन? Clear? Now come to the mat.floor. Mat.floor. Mat.floor as the name suggested, ये राउंड ऑफ करता है मिनिमम पे। किस पे करता है? मिनिमम। तो अगर हम देखें बस, जो काम पॉजिटिव में होता है वो यहाँ निगेटिव में होता है, और जो काम निगेटिव में होता है वो यहाँ पर पॉजिटिव में होता है। तो एक काम करते हैं, इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, और बहुत ध्यान से देखना, हमने mat.seal की जगह पर कोई भी पेपर इन फंक्शंस के बिना नहीं बनता। मतलब इन ऑल द पेपर दीज फंक्शंस आर ऑलवेज इंक्लूडेड।
mat.floor, फ्लोर के भी दो कॉम्बिनेशन बनते हैं, बीच में हम आपसे बात भी कर रहे हैं। पहला कॉम्बिनेशन पॉजिटिव के साथ और दूसरा कॉम्बिनेशन नेगेटिव के साथ। तो अब यहां लिख देते हैं mat.floor विथ नेगेटिव। Just 1 second. It's almost completed. So first of all, I will write down the answer. Then we will test. See, mat.floor का मतलब होता है ये मिनिमम की तरफ डाइवर्ट होता है, मिनिमम पे राउंड ऑफ करता है। तो 4.0 विल बिकम 4.0, इट्स अ न्यूट्रल केस। अब अगर पॉइंट के बाद 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर है, 1 से लेकर 9 तक, तो ये इंटीजर पार्ट एज इट इज रिटर्न कर देगा। और नीचे तक का भी इसका भी आंसर 4.0 आ जाए। अंडरस्टैंड? क्लियर? अब निगेटिव में क्या होता है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। निगेटिव के केस में जो -4.0 है वो तो -4.0 ही रहेगा, बट पॉइंट के बाद अगर 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट है और नंबर आपका निगेटिव है, तो ये एक इंक्रीज कर देता है, यानी कि -5.0। एक्चुअली अगर देखा जाए तो -5.0 -4 से छोटा ही है, तो ये मिनिमम की तरफ डाइवर्ट होता है, वो मैक्सिमम। ठीक है, अब हम आपको एक वो दे देते हैं सिनेरियो। ठीक है, द फर्स्ट टू केसेस आर न्यूट्रल, मतलब -4.0 is will be -4.0 and 4.0 will become 4.0, बट पॉजिटिव के केस में ये इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लोर, और निगेटिव में इंटीजर को एक इंक्रीज कर देता है। इसके बाद हम लोग RNT और राउंड भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो, इसको भी तुम्हारे ग्रुप में भेजा जा रहा है। Take the chair from outside. Chair. Okay, done. Now I'm writing some questions in mixed manner. mat.floor 17.0 आप जो दे रहे हैं वो करना। 18.8, 19.200, -4.35, -7.45 और यहां पर mat.seal 6.5, mat.seal -4.6, 34.9, $49.9,
और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आप अपने माइंड को चेंज कर पाते हैं मैटडॉटसील के लिए या नहीं। बस इतने का आंसर मुझे चाहिए है अर्जेंट बेसिस पर। यू नो अर्जेंट बेसिस, सॉल्व इट। Good. 9th class response of the offline batch is very fast, and also online batch response is also very fast. Now please cross check your answer in 1 minute. Now this is the answer of all these questions. Please cross check. If you have any difference, discrepancy, please let me know. Clear? कोई आंसर मिसमैच हो रहा है देख लो, वरना अगर वहां मिसमैच हो गया तो नंबर डिटेक्ट हो जाएंगे। Okay, now we are going to another very important function, RINT. These 4 points are very important for RINT. I have written. Okay, 1 minute. First of all, RINT is a function also used for round off. Round off, it accept the double type value and return the double type value. ठीक. But you have to understand few points. If after decimal digit is 5 or greater than 5, 1 minute, then it round off and increase the integer value by 1. पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से अबव है, पॉइंट के बाद की वैल्यू अगर 5 या 5 से अबव है तो ये राउंड ऑफ करके इंक्रीज करके इंटीजर वैल्यू को 1 बना देता है। क्लियर? बट एक्सेप्शन केस क्या है वो समझना जरूरी है। if before decimal any even digit is there, यानी डेसिमल से पहले अगर कोई इवन डिजिट है एंड आफ्टर डेसिमल 5, then answer will be inclined towards even. Answer will be inclined towards even. Even की तरफ आंसर inclined होगा। 1 minute. But if before decimal any odd digit and after decimal 5, then it will increase. मैं बताता हूं इसका मतलब क्या हुआ। जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट, बहुत ध्यान से देखना। These 4 cases are important. mat.rint 12.5 कितना लिखा? पॉइंट के बाद 5 था या नहीं? पॉइंट के बाद कितना था? 5। और पॉइंट से पहले क्या था? इंटीजर। तो अगर पॉइंट के बाद 5 है और पॉइंट के पहले इंटीजर है, क्या है? तो फिर आंसर इसका इवन की तरफ जाता है, यानी कि पॉइंट से पहले क्या है? इवन। तो इसका आंसर आएगा 12.0। कितना आंसर आएगा? अब देखो, पॉइंट के बाद 5 है लेकिन पॉइंट से पहले ऑड डिजिट है, तो ये इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा? इंक्रीज। यहां देखो, पॉइंट के बाद क्या था? 6। पॉइंट के बाद कितना? बहुत आराम से समझते हैं। देखो, mat.rint में क्या होता है, पॉइंट के बाद अगर 5 है तो जनरली अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से अबव है तो इंक्रीमेंट तो होगा। बट अगर पॉइंट के बाद 5 है और पॉइंट से पहले 2 आ रहा है, 2 मतलब इवन, तो इसका इंक्लेशन इवन की तरफ जाता है, तो ये 12.0 रिटर्न कर देगा। कितना रिटर्न कर देगा? इंक्रीज नहीं करेगा।
इंक्रीज नहीं करेगा, सेम वैल्यू रिटर्न कर देगा इवन के केस में, लेकिन पॉइंट के बाद 5 होना चाहिए। ओके, अब देखो पॉइंट के बाद 5 था, लेकिन पॉइंट से पहले इवन नहीं था, ऑड था, तो ये इंक्रीज कर देगा। 14.0 आ गया, नीचे देखो 14.0 आ गया। अब देखो पॉइंट के बाद अगर 5 से ऊपर की वैल्यू है तो फिर वो एक्सेप्शनल केस अराइज नहीं करता। पॉइंट के बाद अगर ऊपर की वैल्यू है तो इसे इंक्रीज करना ही है, चाहे पॉइंट से पहले इवन हो या ऑड हो, इट डजंट मैटर। तो पॉइंट के पॉइंट के बाद 5 हो और पॉइंट से पहले इवन है तो इनक्लेशन इवन की तरफ जाएगा, मतलब 12.0 रिटर्न करेगा। और पॉइंट के बाद अगर 5 है और पॉइंट से पहले ऑड है तो फिर ये इंक्रीज करता है। अब रुको जल्दी से, कोई कहीं जाएगा नहीं, 1 मिनट, मैं लिखवा रहा हूं, मैं आपको सब लिख कर दूंगा, ठीक है। mat.rint 17.5 पॉइंट, इसको कॉपी में लिख लेना। तुम बेटा वली लिख नहीं रहे यार कुछ, अभी पहले पूरे बना तो ले। 17.6 18.5 24.5 27.5 39.5 78.7 क्वेश्चन के आंसर है यार, क्या बेटा क्या पूछ लिया तुम? तो दे दे हाँ, सब सारे देख लिए। आंसर्स आगे, ये असाइनमेंट आपको करने के लिए दिया गया है। कोई बात नहीं, मैं पहले सॉल्व कर रहा हूं आपके डिस्कशन के साथ। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो पॉइंट के बाद 5 है और पॉइंट से पहले ऑड है, तो एक्सेप्शन केस नहीं है, इवन होना चाहिए। तो अगर पॉइंट के बाद 5 है और पॉइंट से पहले ऑड है तो इट विल बिकम 18.0। पॉइंट के बाद 6 है, अब तो इंक्रीज होना ही है। अब देखो पॉइंट के बाद 5 है और पॉइंट से पहले इवन डिजिट है, तो इवन डिजिट पे ये इंक्रीज नहीं करता। अगर पॉइंट के बाद 5 है तो दिस इज अ एक्सेप्शनल केस, तो ये आंसर देगा, इसलिए मैंने तीनों को रखा था सेम। पॉइंट के बाद 5 है और पॉइंट से पहले इवन है तो 24 पॉइंट, हमेशा याद रखो अगर पॉइंट के बाद 5 है और पॉइंट से पहले इवन है तो फिर इसका इंक्लेशन इवन की तरफ जाएगा और इंटीजर पार्ट रिटर्न करेगा। पॉइंट के बाद 5 है और उससे पहले ऑड है, नो प्रॉब्लम। 28.0। अब पॉइंट के बाद 5 है और पॉइंट से पहले ऑड है तो कितना?
पॉइंट के बाद 7 है, तब तो इंक्रीमेंट होना ही है, चाहे इवन हो या देन 79 पॉइंट चला गया 5 से पहले वाली वैल्यू इसको 5 से कहीं भी ऐसे मैच आउट राउंड किया 78.4 हुआ सर 78.4 हुआ। तो ये तभी राउंड ऑफ करता है जब गिनती 5 या 5 से अधिक हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट आई वांट टू इंक्लूड वन मोर केस। पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से अबव है तो ही राउंड ऑफ होगा। मान लो 76.4 है, तो अब ये राउंड ऑफ की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, देन आंसर विल बी 76.0। ओके, I want to compile, and after compilation we have covered a very important topic today's. Can you please match the answers? All answers are properly matching. 1 second. वैसे तो रूल्स एंड रेगुलेशन हम आपको ग्रुप में एक बार शेयर ही कर देंगे। अच्छा, एक फंक्शन और बचा है, आई डोंट थिंक वी शुड लीव इनकम्प्लीट। mat.round. Round is a normal mathematical round off. Normal mathematical round off. One second. Heading डालिए mat.round. ओके, अब आती है बात mat.round की। तो mat.round में आपके पास दो इंपॉर्टेंट केस है। अगर आप डबल टाइप की वैल्यू पास करते हैं जिसको आपको राउंड ऑफ करना है, तो ये आंसर लॉन्ग टाइप देगा। मतलब राउंड ऑफ करने के बाद ये आंसर फ्रैक्शनल में नहीं रखता, इंटीजर में ले आता है। एग्जैक्टली राउंड ऑफ का मतलब एक्चुअली ओरिजिनली यही है कि कुछ अगर आंसर फ्रैक्शनल में आ रहे हैं लाइक 17.5, तो लोग कहते नहीं प्लीज राउंड ऑफ कर लीजिए, तो 17.5 को हम राउंड ऑफ करके 18 कर लें, और अगर 17.3 है तो डेट विल बिकम 17। लेकिन ये डेसिमल में आंसर को नहीं रखता, ये आंसर को लेकर आता है किसमें, लॉन्ग में। अगर डबल है तो लॉन्ग में, और अगर फ्लोट है तो इंटीजर में। फ्लोट है तो आप देखो 2.1 तो 2.1 मतलब जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। अच्छा, मैंने अभी आपको mat.rint पढ़ाया था, तो जो रूल्स पॉजिटिव में थे वही रूल्स निगेटिव में होंगे सेम। मतलब नो चेंजेस फॉर नेगेटिव एंड नो चेंजेस फॉर पॉजिटिव। mat.round में भी सेम रूल्स विल बी अप्लाई फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, देयर विल बी नो चेंज। ओके, अब हम थोड़ा नीचे आते हैं। 2.1 पॉइंट के बाद की गिनती और डिजिट 5 या 5 से अबव नहीं है, तो 2.1 will become 2 and 2.4 will become 12.6 will become 30। ये डेसिमल में आंसर नहीं देता है, ये इंटीजर में देता है। 13.13 पॉइंट के बाद की गिनती या 5 या 5 से अबव है तो इंक्रीमेंट होना जरूरी है इंटीजर पार्ट। 2.9 2 रहेगा एंड 12.6
and 13.6. 14. Sir, 14.0. हेलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो यहां से एक्चुअली थोड़ा सा आंसर चेंज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि राउंड की जगह पर RINT आ गया, बट कोई बात नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, जो आ गया उसको फिर वैसे ही करेंगे। अब देखो mat.RINT 2.9, तो पॉइंट के बाद की गिनती 9 हो गई है, तो आंसर 3. गुड। एंड 2.0, तो न्यूट्रल केस 2. अब 12.6 पॉइंट के बाद की 13.0, क्यों भैया? एंड पॉइंट के बाद 6 है, देन 14 पॉइंट। थोड़ा सा अगर हम नीचे आए तो इसको हम लोग मैच भी कर सकते हैं। देखो 2.1 विल बिकम 2.2, 2.4 2, 12.6 13, 12.6 13 एंड 13.6 14, फिर 3.0 2.0 एंड 13 पॉइंट 12.6 will become 13.0 और एक और होगा 14.6। एब्सोल्युटली फाइन। तो जरा सा नाउ आई एम सेंडिंग इन योर ग्रुप। मैं समझ रहा हूं कि अभी ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं हमने, ठीक है, तो पॉज रिकॉर्ड। mat.random, रैंडम एक ऐसी वैल्यू देता है जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इट रिटर्न द वैल्यू विच वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। मतलब हमें नहीं मालूम है कि कौन सी वैल्यू आएगी, ठीक है, कौन सी वैल्यू आएगी एग्जैक्टली, ठीक है। हमें यह मालूम है कि वो वैल्यू किस रेंज के बीच से आएगी, बट वी नो द रेंज। हमें रेंज मालूम होती है, लेकिन ये नहीं मालूम होता है कि कौन सी वैल्यू हमें प्रिडिक्ट होगी। जैसे कि ये कहा गया कि कल आपको 1 से 10 के बीच में एक नंबर एलोकेट होगा, बट कौन सा एलोकेट होगा डेट वी डोंट नो। 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। अच्छा, बहुत से लोगों ने डाइसेस का गेम खेला होगा, लूडो। जब आपकी चांस आती है, ठीक है, आप डाइस को रन करते हैं, तो आपको यह नहीं मालूम है कि कौन सा आउटकम आएगा, बट ये मालूम है कि 1 से 6 के बीच में आएगा, बराबर? एब्सोल्युटली फाइन। तो हमें mat.random में ये नहीं मालूम होता है कि कौन सी वैल्यू आएगी, बट ये मालूम होता है कि कौन सी रेंज में से वैल्यू। सो डोंट वरी, आई हैव प्रिपेयर्ड अ वेरी गुड नोट्स ऑल्सो, जस्ट गिव मी 1 minute. सी, सबसे पहले द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नोट्स हम आपको सब देंगे, इसको ज्यादा हम डिटेल में, मैं थोड़ा जल्दी से इसको कवर करना चाह रहा हूं, ठीक है। mat.random return the double type value. Point number 1 is very important. It always return the double type of value. It return the value between 0 and 1. ये 0 से 1 के बीच में बाय डिफॉल्ट वैल्यू देता है। 0 से 1 के बीच में भी बहुत सी वैल्यूज होती हैं, 0.2, 0.3, 0.5, 0.567, 0.568, which in which 0 is inclusive and 1 is exclusive. मतलब बाय डिफॉल्ट ये 0 से 1 के बीच में रैंडम वैल्यू देगा। इसमें 0 जो है वो इंक्लूडेड होगा, बट 1 विल बी excluded. फॉर एग्जाम्पल, हमने math.random को कॉपी किया, जस्ट अ मोमेंट, थैंक यू। तो आई हैव रिटन math.random। अब इसे हम कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद हम इसे रन करते हैं, यू विल गेट सम वैल्यू।
बट कौन सी वैल्यू आएगी हमें नहीं मालूम। इसने ये पहली वैल्यू दे दी एंड यू कैन सी दैट दिस वैल्यू इज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, अच्छा अब देखो इस वैल्यू को नोट कर लो। वैसे तो नोट करना बहुत मुश्किल है, मैं लिख लेता हूं। 1 मिनट। ये हमारी थी फर्स्ट रन पे वैल्यू। अब हम अपने प्रोग्राम को जब सेकेंड टाइम रन करेंगे तो आई एम नॉट श्योर कि हमें यही वैल्यू मिलेगी। बहुत ही रेयर कोइंसिडेंस है कि आपको यही वैल्यू रिपीट हो जाए, बट 99% चांसेस कि आपको एक नई वैल्यू मिलेगी। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी कंपाइल दिस प्रोग्राम, या डायरेक्ट रन करा देते हैं। कुछ डिफरेंट है वैल्यू, इसे भी हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद में यहां पर पेस्ट करते हैं। नाउ यू कैन सी दैट दिस वैल्यू इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट रन। मिल रही हैं अलग अलग वैल्यूज। ओके, अब हम थर्ड रन पे देखना चाहते हैं कि हमें कौन सी वैल्यू मिलती है। तो थर्ड रन पे हम तीसरी बार रन करा रहे हैं। ओके, नाउ दिस इज द थर्ड रन आउटकम। इसे भी हम यहां पर पेस्ट कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो एवरी टाइम यू विल गेट द डिफरेंट वैल्यू। ओके, हम चाहते हैं, सपोज माय प्रोग्राम इज दैट write a program to print 5 different values between 0 to 1 using mat.random function। no problem। हम लोग एक काम करेंगे, इस फंक्शन को एक लूप के अंदर ले लेंगे। आई एम वेरी मच श्योर कि आप लूपिंग के बारे में जानते हैं। तो अब ये लूप 5 बार चलेगा, तो you will get the 5 different values on screen and all the values will be different from one another। there might be a strong chances, पूरे चांसेस हैं कि आपको अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। now you can compare। नहीं समझे? understand? this is the functionality of the random। रैंडम के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बाय डिफॉल्ट कहां से कहां तक वैल्यूज देता है। 0 से 1 के बीच, इन विच 0 is included and 1 is excluded। सेकेंड, इट ऑलवेज रिटर्न डबल टाइप ऑफ वैल्यू। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। प्रिंट द रैंडम वैल्यूज बिटवीन 0 to 1 and 10 values। प्रिंट द रैंडम वैल्यूज बिटवीन 0 to 1। प्रिंट द 10 रैंडम वैल्यूज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 रैंडम वैल्यूज हैं। प्रिंट द 10 रैंडम। ठीक है, अब देखो ये 10 रैंडम वैल्यूज प्रिंट हो। क्लियर? दिस एग्जांपल ऑलरेडी वी हैव कवर्ड। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि प्रिंट द रैंडम वैल्यूज बिटवीन 0 to 9। ओके, हमें 0 से 9 तक रैंडम वैल्यूज डिस्प्ले करनी। तो 0 से 9 का मतलब ये हो गया कि जिसमें 0 इंक्लूडेड हो और 9 भी इंक्लूडेड। ठीक है, इसमें 0 और 9 दोनों इंक्लूडेड हैं। तो 0 से 9 के बीच में देखो ये आ रही, इसमें 0 भी है और 9 भी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने mat.random मेथड को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे देन योर रेंज विल बी डिसाइडेड फ्रॉम 0 to 9। इसमें 0 भी इंक्लूडेड होगा और 9 भी इंक्लूडेड होगा। चलो हम एक ऐसा फंक्शन बनाने जा रहे हैं जो 1 से लेकर के 100 के बीच में सारी रैंडम वैल्यूज दे। 1 से 100 के बीच में। तो जस्ट अ मोमेंट, बहुत ध्यान से देखना। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100। कितनी वैल्यूज दे? 10। I want to print all the 10 values random between 0 to 100।
बिटवीन 0 to 100। बट अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो 100 इंक्लूड नहीं होगा। हाँ 99 तक रहेगा, 100 इंक्लूड नहीं होगा। तो जस्ट अ मोमेंट, देखो ठीक है, दोबारा फिर हम इसको रन करते हैं। नेक्स्ट टाइम आई वांट टू रन दिस, कुछ और डिफरेंट वैल्यूज, लेकिन सारी वैल्यू 0 से 100 के बीच में, लेकिन 100 इसमें इंक्लूडेड नहीं, 0 to 99 है, 99 इंक्लूड होगा, बट हमें 100 को भी इंक्लूड करना है। वो आ नहीं रहा है, वो एक अलग बात है, क्योंकि रैंडम है ना, कभी भी आ भी सकता है। बार बार रन करेंगे तो कोई ना कोई कॉम्बिनेशन में आ सकता है, बट नहीं आ रहा है, 99 नहीं आ रहा है। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। 96 तक आ गया है, बट नहीं, ओके। बट हमें अपना फॉर्मूला ठीक रखना है, तो हम यहां पर 101 कर देंगे। तो 101 का मतलब है कि अब ये सारी रैंडम वैल्यूज डिस्प्ले करेगा 0 to 100, in which 0 and 100 both are included. Random values between 0 to 100, in which 0 will be included and 100 will be included, right? कॉपी, और कॉपी करने के बाद में सेंड कर दिया। अब हम अपने एग्जाम्पल्स में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सपोज वी वांट टू प्रिंट, तो ठीक है, सपोज वी वांट टू प्रिंट द इंटीजर वैल्यूज बिटवीन 0 to 9। मतलब अब हम चाहते हैं कि जो डेसिमल पार्ट था, फ्रैक्शनल पार्ट, वो इंक्लूड ना हो, तो वी कैन डू एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। कैसे? हम अपने एग्जाम्पल में आ जाते हैं, बहुत ध्यान से देखो, और इसको कर लेते हैं हम लोग 11, और यहां पर हम कर लेते हैं टाइप कास्टिंग। अब क्या होगा, ये 0 से लेकर के 10 तक सारी इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगा। Now it will print all integer values between 0 to 10, in which 0 will be included and 10 will be included, right? Clear? Compile. And I want to run. एक्चुअली ब्रैकेट्स का इश्यू था, इसलिए आंसर उसने, इट्स फाइन। ये जो 3 0 आ रहे हैं वो भी एक पॉसिबल केस है, क्योंकि 0 से लेकर 10 तक की वैल्यूज थी, तो उसमें 0 2-3 बार भी रिपीट हो सकता है, कोई बात नहीं ऐसी। ठीक है, और बेटर अगर आंसर चाहते हो तो एक बार और रन करा लो। अब ठीक आ रहा है? ठीक है, तुमको स्टार्टिंग वैल्यू भी मिल गई और लास्ट वैल्यू भी। तो नाउ इट विल प्रिंट ऑल द इंटीजर वैल्यूज बिटवीन 0 to 10, इन विच 0 and 10 बोथ विल बी इंक्लूडेड। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, ये सब एक ही जैसे केसेस हैं। अब देखो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट केस। जितने भी केसेस हमने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं, उन सारे केसेस में बाय डिफॉल्ट हमारे कॉम्बिनेशन 0 से प्रिंट हो रहे थे, बट आई डोंट वांट टू ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। हम 1 से 10 भी जाना चाहते हैं, 2 से 10 भी जाना चाहते हैं, 5 से 10 भी जाना चाहते हैं, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू आई वांट टू चेंज।
This is the last discussion of today's class. Okay. तो जर्नल सिंटैक्स क्या है इसका? ये सबसे पहले ये बताओ कि हमें कहां से कहां तक की वैल्यूज निकालनी। जैसे मान लो हम प्रिंट करना चाहते हैं 1 से 20 के बीच की वैल्यूज, मतलब जिसमें 1 भी इंक्लूडेड हो और 20 भी इंक्लूडेड। तो हम लिखेंगे int math डॉट रैंडम मल्टीप्लाई। हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 20 माइनस मिनिमम वैल्यू क्या है? 1 एंड प्लस 1। फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला हम बना रहे, और मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी? तो ये बन गया हमारा एक जनरल फॉर्मूला। बन गया कि नहीं बन गया? अच्छा, अब हम इसको क्या ऐसे भी लिख सकते हैं? int math डॉट रैंडम मल्टीप्लाई। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 19। 19 प्लस 1 20। तो 20 और प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा? 1। क्लियर? तो आई वॉन्ट टू यूज दिस फॉर्मूला। Now it will print all the random value between 1 to 20, in which 1 and 20 are included. 1 and 20 will be included. Just a moment. Relax. मैं यहां पर फादर का फोन आया। जितना तुमने सी पढ़ा है कोई कॉपी नहीं लाया? Was last discussion. Can you please find out? It is printing all the random values between 1 to 20, in which 1 is included and 20 is also included. लेकिन इसमें 20 तो आ गया, मतलब एक्सट्रीम लिमिट तो आ गई, लेकिन 1 नहीं आया। तो 1 को लाने के लिए आपको बार बार रन करना पड़ेगा। आ गया, उधर 20 आ गया तो इधर 1 आ गया। अंडरस्टैंड? तो यानी कि दिस इज कंफर्म। थैंक यू सो मच। एंड आई वांट टू प्रिंट आउटकम। ठीक है, एंड जल्दी से जल्दी हम ये रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे चैनल पे, एंड यू कैन वॉच दिस कंबाइंड लेक्चर।